वतन के चिराग हो तो उजाला करो, वतन के चिराग हो तो उजाला करो, दिल में मुल्क से मोहब्बत भी पाला करो। ये जमीन ये आसमां मेरा भी है और तेरा भी है, गैर देशों की जयकार लगाकर अपना मुंह मत काला करो, अपना मुंह मत काला करो। Sir, I would like to bring it on record the organized loot by airlines specifically to Gulf countries. Sir, the June, July, August, September are the months of school holidays, and it's a holiday season. Sir, but it is not a holiday season, it is a horror season due to the exorbitant, exploitative and extortionist rate of prices of the ticket fare by the airways. Sir, if you look at it, we call it organized loot because it is not just double, triple, quadruple, but the rate is increased by more than 5 times, and we call it an organized loot because if a laborer, poor laborer wants to travel from Gulf countries to India and back, ordinarily he has to pay rupees 8,000 to and fro, meaning 16,000. But now the present rate, the average rate for from Gulf country to Kerala or India is 46,000, which means for him it would be close to 1 lakh. How will that poor laborer pay, sir? Now if a middle class family of 4 wants to travel, they have to pay ordinarily, they have to pay around 36,000. Now it would come up to 3,64,000, sir. Yes. This is the rate of which there's a hole being burned in the pockets of the poor laborers and middle class in the Gulf who are toiling hard to bring in remittance to our country. So we call it an organized loot because the airlines are very much invariably together coordinating the high fares, and they play a role together, they stand united in this aspect. So we call it an organized loot because the government says the standard reply of the market-driven and also the international air IATA decides it. So by being the washing the hands, the government is actually being a partner in crime in this organized loot. So we call it an organized loot because we always say it is they who bringing the remittances, the foreign exchange to our country. So India has received US dollars 120 billion in the last 2023, and Kerala accounts 19% of it. So instead of, we call them as the backbone of our remittance economy, but actually we are breaking their backs. So I honestly request the central government, the Honorable Prime Minister, the Civil Aviation Minister to intervene and stop this organized loot. I urge the central government to negotiate for bilateral increase of seats and also to ensure the start of life. Manya Srimati Darshana Singh, concerned over death of children due to fall in open borewell. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे 0 आवर में बोलने का मौका दिया। मैं आज इस सदन में देश भर में खुले बोरवेल से आए दिन होने वाली घटनाओं को लेकर अपना विषय रखना चाहता हूँ। महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि देश भर में खुले बोरवेल से आए दिन होने वाली घटनाएं काफ़ी चिंताजनक है। प्रायः देखने में आया है कि लोगों द्वारा खराब ट्यूबवेल को उखाड़कर अन्य स्थानों पर शिफ्ट कर दिया जाता है और ट्यूबवेल को शिफ्ट करने के उपरांत बोरवेल को खुला छोड़ दिया जाता है और उसमें मिट्टी भरकर समतल नहीं किया जाता। इस लापरवाही के कारण बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं देश भर में अक्सर होती रहती हैं, जिससे जान माल का नुकसान होने के साथ साथ बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए प्रदेशों की सरकार द्वारा भी समय समय पर खराब बोरवेल को बंद करके भूमि समतल करने के बारे में आदेश दिया जाता है, पर इसके बावजूद इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। आज से 1 दशक पहले 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बोरवेल में गिरकर होने वाली मौतों पर एक गाइडलाइन जारी की थी, परंतु 1 दशक के अंतराल के बाद भी प्रदेश सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से बोरवेल में गिरकर बच्चों की मौत होती रही। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि देश भर में खराब पड़े खुले बोरवेल को बंद करने के लिए समुचित कदम उठाने की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे लापरवाही के कारण बच्चों के बोरवेल में गिरने की घटनाओं को रोका जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शना जी। माननीय श्री संजय सिंह जी, कंसर्न ओवर कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन द कंट्री। धन्यवाद मान्यवर, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, कैंसर की बीमारी एक इतनी बड़ी और गंभीर बीमारी है
कि आदमी दो तरीके से टूटता है। जिस व्यक्ति को कैंसर होता है वो शारीरिक रूप से टूटता है और उसका परिवार आर्थिक रूप से टूटता है। और इसके जो आंकड़े हैं मान्यवर वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। जितनी तेजी के साथ हिंदुस्तान में कैंसर की बीमारी बढ़ रही है उस पर हम सबको, पूरे सदन को और सरकार को चिंता करने की और कदम उठाने की आवश्यकता है। माननीय WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में 22 लाख लोगों की मौत कैंसर से हुई है और अकेले 2022 में 9 लाख लोगों की मौत कैंसर से हुई है। माननीय हमारे देश में कैंसर से इतने लोगों की जान चली जा रही है जितना किसी देश की आबादी नहीं है। मैं देख रहा था देशों की आबादी, भूटान की आबादी 7,80,000 है, गुयाना की आबादी 8 लाख है, लग्जमबर्ग की आबादी 6,53,000 है, मालदीव की आबादी 5,24,000 है। जितनी किसी देश की आबादी नहीं है उससे ज़्यादा लोग हमारे देश में कैंसर से मर रहे हैं। और इसके बारे में मान्यवर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है जो इस सरकार के सामने विचाराधीन है और उसके सदस्य रामगोपाल, उसके अध्यक्ष रामगोपाल यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं, वो पब्लिक डोमेन में है रिपोर्ट। उसकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिसको देश के अंदर लागू करना बहुत आवश्यक है। वो रिपोर्ट साफ तौर पे ये कहती है कि इस देश के अंदर 25% लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज कराने की व्यवस्था की जाए। सरकार के द्वारा ऐसा कानून बनाया जाए कि 25% फ्री इलाज कैंसर के मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर मिले। दूसरी बात मान्यवर, बच्चों को जो कैंसर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, उनको देख के परिवार पीड़ित होता है, बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है, अपना घर बेच के, जमीन बेच के उसका इलाज कराते हैं। तो इसलिए बच्चों का इलाज पूरी तरीके से फ्री किया जाए अगर किसी बच्चे को कैंसर की बीमारी होती है, ये दूसरी सिफारिश उसमें है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है मान्यवर कि हैजा, मलेरिया, ऐसी मेनिंजाइटिस टाइप ऐसी तमाम बीमारियां वो सरकार द्वारा नोटिफाइड की गई हैं, लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ये अधिसूचित नहीं की गई, ये नोटिफाई नहीं की गई। ये भी एक मान्यवर चिंता का विषय है। तो मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि इस बीमारी को नोटिफाई किया जाए। धन्यवाद माननीय संजय जी, धन्यवाद। समय खत्म हो रहा है, धन्यवाद। माननीय श्री महाराजा संजा ओबा लेशंबा डिमांड टू डिक्लेयर द इमा कैथल, दैट्स विमेन मार्केट ऑफ मणिपुर, एज ए लिविंग कल्चरल हेरिटेज साइट। Thank you, Deputy Chairman Shah, for giving me this opportunity. And my 0-hour submission is demand to declare the Ima Kaithel Women Market of Manipur as a living cultural heritage site. Sir, the Ima Kaithel in Manipuri, Ima means mother and the Kaithel means market, that is Mother's Market, also popularly known as the Honorable Ima Kaithel, situated at the heart of Imphal city. Manipur is one of the oldest women markets in Asia, run only by women folk, and no male traders are allowed to open stalls or shop there. It has a very long mythological story about its establishment. It is not only a commercial hub, but it also occupies as a vital socio-economic space in the history of Manipur. Sir, the two women uprisings of Manipur, known as the Nupilan of 1904 and 1939, against the British colonial rules, were initiated, organized by the women leaders of this market. This market is a unique symbol of women economic empowerment, and it may be described as a great example of Nari Shakti. Because of its unique nature, its historical significance, and its value of women empowerment, I urge upon the Union government to declare the Ima Kaithel or Honorable Ima Kaithel as a living cultural heritage site under Article 51A and to preserve it as a place of historic interest and national importance under Article 49 of Indian Constitution. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय लेशंबा जी। माननीय डॉक्टर वी शिवदासन नीड टू एड्रेस द इश्यूज फेस्ड बाय जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स। Respected Chair, the history of our world teaches us that journalism is the integral part of the liberation movement. The world-renowned personalities like Gandhiji, Bhagat Singh, Karl Marx and Lenin used media as a tool for struggle. Many of freedom fighters were active in journalism. I am sorry to say that India, the land of Periyar, Ambedkar and Rabindranath Tagore, is in the 159th position out of 180 countries in press freedom index. The journalists are facing police cases including UAPA, arrest and imprisonment. The journalists like Prabir Purkayastha and Siddiq Kapan were in jail because they were speaking truth to power. In India, in the last 10 years, more than 100 journalists were killed in different places, including the noted
editor and writer Gauri Lankesh, the communal fanatics targeted journalists who are standing with the people. The journalists who are trying to expose the anti-people policies of the government, the rulers are targeted by the forces. Working journalists are one of the most exploited groups in India. Thousands of brilliant youngsters are working in media, but the government is not ready to protect them. The government is not taking initiative for proper wage to the journalists. After the implementation of neoliberal economic policy, the number of permanent employees have been reduced. The journalists have no social security. There are no proper welfare and pension schemes. Sir, Madhichia Commission was appointed to study the issues of journalists, and it has suggested a minimum wage to the media persons. But till now, the majority of the journalists are not getting the suggested salary. Sir, the government is not bothered about the journalists. The journalists are working most inhuman conditions. Basic amenities are not there. Human rights are violated in their workplaces. Sir, journalists have no proper work time. Legally, the working time is 8 hours per day, but they are working 14 to 17 hours. Sir, when the journalists are raising the issues of them, they are not getting the legal protection from the government. They are unable to form the associations as trade unions in their media institutions. Sir, at present, the real news and real journalists have been degraded. The journalists have been treated as column fillers between advertisement. Sir, some of the media has given more importance to the advertisement than the news. Thank you, Dr. V. Sudasan ji. Now, Sri Mujibullah Khan, concern over delays in completion of national highway projects in Odisha. धन्यवाद उपसभापति महोदय। एक गंभीर विषय में सदन को अवगत कराने के लिए मुझे आपने मौका दिया। उड़ीसा के बारे में, खास करके नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मैं बोलना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा राज्य सरकार का जो रास्ता है, जो स्टेट हाईवे है, वो हमारे मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन बाबू जो स्टेट हाईवे बनाए हैं, उड़ीसा के हर गांव, हर गली, हर कूचा में रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। जब तक कोई इंसान नहीं देखेगा तब तक वो समझ नहीं पाएगा। अगर कंपैरिजन किया जाए स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, तो सोचिए मत, जब कोई घर से निकलता है तो घर वाले पूछते हैं कौन से रास्ता में जा रहे हो। अगर वो नेशनल हाईवे में जा रहा है तो घर वाले ऊपर वाला से दुआ करते हैं, पूजा करते हैं कि वो सही सलामत वापस आ जाए। हमारे उड़ीसा का नेशनल हाईवे का हालत आपको बताना चाहता हूँ। डुबरी चंडीखोल नेशनल हाईवे 53 4 लेन होने वाला है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। राजामुंडा बारकोट नेशनल हाईवे 4 लेन वाला है। नेशनल हाईवे NH 23 वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बरगढ़ बरपाली और बरपाली से बलांगीर नेशनल हाईवे 26 4 लेन वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अनुगुल संबलपुर NH 55, कटक अनुगुल 55 ये 4 लेन है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। भद्रक बालेश्वर NH 16 वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और झारसुगुड़ा भोजपुर जो वाइडिंग के लिए 49 NH वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेशनल हाईवे का हालत बहुत ही बुरा है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार की तरफ से भी बोलिए या हम लोग सांसद के हिसाब से भी बोलिए, मैं अनुरोध करना चाहता हूं केंद्र सरकार को आपके माध्यम से, जो नेशनल हाईवे का हालत इतना बुरा उड़ीसा में क्यों है, किस कारण वजह से नेशनल हाईवे का हालत ऐसा हुआ है, इतना साल से कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है। 1-2 कंप्लीट नहीं होता अलग बात है, लेकिन करीब 6-7 ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट नहीं हुआ है और काम भी बहुत धीमा चल रहा है और वो काम भी अच्छे क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि इधर एक साइड में कंप्लीट होता है, दूसरे साइड में रास्ता खराब हो जाता है। तो आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सरकार को निर्देश दीजिए कि नेशनल हाईवे का जो हालत है जितना जल्दी हो सके नेशनल हाईवे को ठीक करें और लोगों का जान और माल का रक्षा करें, क्योंकि कई एक्सीडेंट होता है अध्यक्ष महोदय। हर 1 दिन में 2 दिन में आप सुनेंगे नेशनल हाईवे में कई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, कहीं कार एक्सीडेंट, कहीं ट्रक एक्सीडेंट, ऐसे बहुत से कीमती जानें जा चुकी हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उड़ीसा का नेशनल हाईवे को जल्दी रिपेयर किया जाए, कंप्लीट किया जाए और लोगों की जान और माल का बचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुजीबुल्लाह जी। माननीय श्री चुन्नी लाल गरासिया, डिमांड फॉर ए न्यू टूरिस्ट सर्किट टू प्रमोट टूरिज्म इन उदयपुर, मेवाड़ एंड सराउंडिंग ट्राइबल एरियाज। धन्यवाद उपसभापति जी, 0 वर्ष में मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। राजस्थान के पर्यटन सर्किटों में नए स्थलों के समावेश हेतु सर्वेक्षण की मांग मैं कर रहा हूं। महोदय, मैं राजस्थान वीर शिरोमणि जो वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम एवं दृढ़ निश्चय के
लिए जाने जाने वाले वीर योद्धा महाराणा प्रताप और उनके सेनापति राणा पूजा भील की धरती मेवाड़ उदयपुर से आता हूं। महोदय, उदयपुर एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इसे जिलों की नगरी भी कहा जाता है और उत्तरी भारत का सबसे आकर्षक पर्यटक शहर भी माना जाता है। उदयपुर को हाल ही में विश्व का सबसे खूबसूरत शहर भी घोषित किया गया है। महोदय, राजस्थान में वर्तमान में 4 पर्यटन संभाग हैं: जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा। इसी तरह राजस्थान में लगभग 10 पर्यटन सर्किट है, जिनमें प्रमुख हैं मरू सर्किट, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर जिले आते हैं; शेखावटी सर्किट, जिनमें सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले आते हैं; डुंडान सर्किट, जिनमें जयपुर, दौसा, आमेर जिले आते हैं; ब्रज मेवात सर्किट, जिसमें भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक जिले आते हैं; हड़ौती सर्किट, जिनमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले आते हैं; मेवाड़ सर्किट, जिसमें उदयपुर, राजस्थान, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले आते हैं; मारवाड़ सर्किट, जिसमें अजमेर, पुष्कर और मेड़ता, नागौर जिले आते हैं; गौरवड़ सर्किट, जिसमें पाली, सिरोही, जालोर जिले आते हैं। महोदय, मैं इस संदर्भ में सरकार से मांग करता हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन पर्यटन सर्किटों में ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जो अभी तक इन पर्यटन सर्किटों में शामिल नहीं किए गए हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान में इन सभी पर्यटन सर्किटों सहित बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर में नए पर्यटक स्थलों का सर्वेक्षण करवाकर इन स्थलों को। धन्यवाद माननीय चुन्नीलाल जी। माननीय श्री सामिक भट्टाचार्य, डिमांड टू चेक एंड कर्ब द मेरांस ऑफ फेक इंडियन करेंसी नोट्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर विषय है। पिछले 2 दशकों से हिंदुस्तान में किसी भी जगह कोई फेक करेंसी पकड़ा गया, किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया गया, तो उसका संबंध सीधा कालिया चौक, मालदा का साथ जुड़े हुए होते हैं। सर, आई डू ऑथेंटिकेट। सर, रिजर्व बैंक का रिपोर्ट है, तो सारे हिंदुस्तान में जितना सारे फेक करेंसीज है उसमें 20% कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सर, वी आर लिविंग अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, वी हैव अ 2200 international border with Bangladesh. We are facing a silent demographic invasion. Not only that, entire demographic design of West Bengal in the border areas have been totally changed. क्रॉस टॉकिंग आपस में बात ना करें। आज जो फेक करेंसी है, ये फेक करेंसी सिर्फ एक आज पश्चिम बंगाल का बीमारी नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत जगह में फेक करेंसी जो चल रहा है, इसी का कारण आज पश्चिम बंगाल का माइग्रेंट लेबर भी खतरे में आ गया है। Our democracy, our economy, our integrity, our internal security is under threat. सर, गंभीरता से इस विषय को विचार करना चाहिए। मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया, ये 3 जेलों में और नया शुरू हुआ बारासात बोलकर एक जगह है उत्तर 24 परगना। नॉट ओनली फेक करेंसी, सर, फेक आधार कार्ड, फेक पैन कार्ड। अब ये सारे सदनों में जो सदस्य बैठे हुए हैं, सभी का स्टेट पास देखिए, सभी जगह पकड़ा जाता है। जो माइग्रेंट लेबर पहुंचता है बांग्लादेश से यहाँ, सर, साइड जो लोग एक बार इस देश को नापाक बोलकर चले गए थे, जो ये डिमांड उठाते हैं, जब माइनॉरिटी हैज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, हमको अलग स्टेट चाहिए, इसी का साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये रुपया से बंगाल में तैयार नहीं होता, बांग्लादेश से आ रहा है और किसी भी एक एजेंसी का माध्यम से इसको बंद नहीं कर सकते। अगर एनआईए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वेस्ट बंगाल पुलिस एक साथ काम करे, उसका साथ साथ सभी राजनीतिक दल सहमत हो और उसमें जनता का भीतर जागरूकता पैदा करे, तभी हम इसको रोक सकते हैं। और ये सीरियस थ्रेट है सर। जैसे हमारे डॉक्टर मनमोहन जी बोले थे प्रधानमंत्री रहते हुए, जो माओइस्ट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंटरनल डेमोक्रेसी, और हम भी आज बोल रहे हैं जो आज changing of demography in the border states and this kind of fake currency, these Bangladeshi infiltrators, they are the biggest threat to Indian challenges. Fake currency, please. Thank you. माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक, डिमांड टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग ऑफ नोटिसेज बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री धनंजय भीमराव महादेव, डिमांड फॉर द भारत रत्न अवार्ड टू नोटेड लिटरेचर लेट अन्नू भाऊ साठे। धन्यवाद उपसभापति जी।
मैं अपनी मातृभाषा मराठी में बोलने की अनुमति चाहूँगा। साहित्य रत्न महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे हे दलित साहित्याचे संस्थापक म्हणून ओळखले जातात। त्यांच्या साहित्यिक कार्यामुळे समाजातील दुर्लक्षित आणि शोषित वर्गाला आवाज मिळाला आणि सामाजिक न्यायाची चळवळ अधिक मजबूत झाली। त्यांनी आपल्या लेखनातून दलित समाजाच्या वेदना आणि संघर्षांना आवाज दिला। त्यांच्या साहित्याने दलित समाजाला अस्मितेची जाणीव करून दिली आणि आत्मसन्मानाची भावना निर्माण केली। त्यांच्या लेखनात सामाजिक न्याय, समता आणि अन्यायाविरोधात कठोर टीका आहे। माझा रशियाचा प्रवास या प्रवास वर्णनात त्यांनी रशियातील समाजवादी व्यवस्थेचे वर्णन केले आहे। तर चित्रा कादंबरीत महिलांच्या सशक्तीकरणाचा विषय हाताळला आहे। त्यांच्या लेखनात बालविवाह विरोध, हुंडा प्रथा बंदी, अंधश्रद्धा अशा समाजातील अन्याय, जातीय भेदभाव आणि श्रमिकांच्या संघर्षाचे प्रतिबिंब आढळते। त्यांनी 35 कादंबऱ्या, 10 लोकनाट्ये, 24 लघुकथा, 10 पोवाडे, 1 नाटक आणि 1 प्रवास वर्णन लिहिले आहे। त्यांच्या फकीरा कादंबरीला राज्य पुरस्कार मिळाला होता। अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्याने भारतीय साहित्यावर आणि समाजावर मोठा प्रभाव टाकला आहे। त्यांच्या लेखनाने अनेक लेखक आणि विचारवंतांना प्रेरित केले आहे। त्यांच्या साहित्याचे अनुवाद रशियन, चेक, पोलिश आणि जर्मन भाषेमध्ये झाले आहेत। शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचाराने प्रेरित होऊन महिला, दलित, शोषित, पीडित यांच्या उद्धारासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न केले आहेत। अण्णाभाऊ साठे यांचे साहित्य हे केवळ साहित्यिक योगदान नसून सामाजिक परिवर्तनाचे माध्यम आहे। त्यामुळे आपल्या माध्यमातून मी केंद्र सरकारकडे विनंती करत आहे की साहित्यरत्न महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना भारतातील सर्वोच्च नागरी सन्मान भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा। धन्यवाद। थैंक यू माननीय धनंजय भीमराव जी। माननीय श्री बिजलाल जी, डिमांड टू नेम ए रोड इन दिल्ली आफ्टर लखी शाह बंजारा। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं दिल्ली में किसी सड़क का नाम लखी शाह बंजारा उर्फ लाखा बंजारा के नाम पर रखने के लिए खड़ा हुआ। महोदय, लखी शाह बंजारा 17वीं शताब्दी के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर थे। उनके पास 1 लाख से ज़्यादा बैल थे जिससे वे ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। 1675 में वह रायसीना हिल में कैंप कर रहे थे। उसी दौरान 1675 में गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब में थे और वहाँ पर पंडित कृपाराम कश्मीरी ब्राह्मण थे। उनका जत्था या उनका महाराज जी बचाइए औरंगजेब हम लोगों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य कर रहा है। वो वही पीरियड है जब हिंदुओं के इस्लाम स्वीकार करने की अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान मेरे पुरखे, हम लोग कोरी और कोली समाज के हैं, कपड़ा बुनना हमारा काम था। उस समय औरंगजेब ने कहा या तो इस्लाम स्वीकार करो या पैसा छोड़ो। हमारे समाज के पास कपड़ा बुनने के अलावा कोई पैसा नहीं था। जो कन्वर्ट हो गए वो जुलाहे कहलाए, उसके बाद अंसारी कहलाए जाते हैं। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, बनारस, ये जो आज अंसारी हैं वो हमारे समाज के हैं जिनको औरंगजेब ने कन्वर्ट किया। और हमारी बिरादरी जो हिंदू रह गई, उनके पास ना पैसा है और ना ही उनके पास खेती है। अब मैं आता हूँ लाखा बंजारा पर। महोदय, उस समय पंडित कृपाराम जी आए, गुरु तेग बहादुर जी ने आश्वासन दिया कि मैं मदद करूँगा। उसके बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ आगरा आ गए, गुड़ का ताल, वहाँ से औरंगजेब ने उठवा लिया। चांदनी चौक लाया गया, इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। 9 नवंबर 1675 को उनके शिष्य मतीदास जी को आरे से चीर दिया गया। दूसरे दिन 10 नवंबर को उनके शिष्य सतीदास को रुई में लपेट करके जला दिया गया और भाई दयाल दास को हाथ पैर बांध करके कड़ाह में डाल करके उबाल दिया गया। जब गुरु जी को टार्चर किया गया, बाध्य किया गया, जब वो तैयार नहीं हुए तो 24 नवंबर 1675 को उनका सिर कलम कर दिया गया। अब उसके बाद वो लोग लाश के साथ बेदबी करते थे। लाखा बंजारा अपने सैकड़ों बैलों के साथ हल्ला बोल दिए, उनकी बॉडी उठाया और ले जा करके अपना घर जो था उसमें रख करके आग लगा दिया, गुरु जी का क्रिमेशन किया। आज जहाँ सिर काटा गया वहाँ गुरुद्वारा शीशगंज है, जहाँ उन्होंने क्रिमेट किया वो है गुरुद्वारा रकाबगंज। महोदय, मेरा डिमांड है कि लाखा बंजारा वो हैं जिन्होंने सरोवर बनाए, उनका उसमें बहुत रोल है। मेरा कहना है कि यहाँ दिल्ली में तमाम विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर रोड हैं, एक रोड को उनके नाम हटा करके लाखा बंजारा का नाम रखा जाए, उनके नाम पर रोड किया जाए, जिनका हिंदुत्व की रक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। माननीय श्री संजीव अरोड़ा जी, डिमांड टू एड्रेस ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केस बिफोर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। Thank you, Vice Chairman, sir, for giving me opportunity to speak on the appeals which are pending with Commissioners of Income Tax Appeals. Sir, I would like to express my deep concern regarding the significant backlog of appeals pending before Commissioner of Income Tax Appeals in India.
The current situation is worrisome because as of April 2024, a staggering number of 5 lakh appeals remain unresolved with CIT, with the majority of these lodged within the recent implemented faceless appellant system. This immense backlog not only contradicts the commitment to timely decisions outlined in the Taxpayers' Charter, but also raises serious questions about equity and fairness within the tax system. Sir, in last financial year, only 61,311, around 10% cases were resolved, which is around 10%, and I am sure equal number must have been filed also. To address the critical situation, I urge the Honorable Minister, through you, to consider the following measures in the upcoming time. It had written budget, but the budget is there, so it can be considered in the budget also. Strengthening legal framework, enact appropriate legislation to enforce stricter time limits on CIT appeals for appeal disposal. The current advisory limit of 1 year is insufficient. Sir, it is an advisory limit, but it's not being adhered to. Taxpayer relief measures, introduce measures to provide relief to taxpayers, waiving the requirement of 20% prepayment before filing appeal, refunding excess tax collected recovered during prolonged delays, granting automatic stay on penalties and prosecution for appeals exceeding the specific time frame, accountability for delays, establishing a system of accountability to address the root causes of delayed within the system. The current pendency crisis discourages taxpayer compliance and undermines the integrity of the tax system. Taxing swift action through these proposed measures will ensure a more efficient, fair and transparent appellate system. Sir, through you, I urge the Honorable Minister to give these suggestions her thoughtful consideration. Thanks. Thank you, Mani Sanjeev Arora ji. Mani Sri Derek O'Brien, demand to reduce rate of GST on health and insurance policies. Sir, the demand is straightforward. Reduce 18% GST on medical and health insurance. Reduce it. In 3 minutes, let me make 4 quick points. This has been there, sir, since July 2007, and it has gone unnoticed. Why should we reduce it? We should reduce it because this is an issue which is burdening people, mainly the middle class. That's why it needs to be reduced. The high tax rate is a burden at 18%. Insurance penetration is low in India, sir. Internationally, it's more than 7%. India, it's under 4%, just about 4%. That's why it should be reduced. Sir, and there's an imbalance in the insurance sector where 75% is health insurance and 25% only is medical. 75% is life insurance and 25% is medical insurance. Sir, how can this be done? Who has raised this? 2 of our MPs here, Saket and Dola Sen, have raised it. My chief minister has written a letter to the finance minister to reduce it. They won't listen to us, sir. Okay? At least listen to the minister, cabinet minister from there who's also written to the finance minister. He's on a highway. From the BJP, he's written. They should listen to him, sir. But when we write, the finance minister will say, no, I can't do anything. GST Council will change it. That is a flawed argument. This is a flawed argument. The ratio in the GST Council, is NDA 2, India parties, everybody else 1. GST Council, as said by the Supreme Court, is an advisory body. So, sir, we mustn't allow the finance minister to hide behind the curtain of the GST Council, sir. You mustn't. Sir, this is a middle class issue. This is not a political issue. Mr. Chidambaram a few days ago said he's got a lot of experience. He said the finance minister should listen. Sir, I appeal. I know all the India parties will be together. I appeal to the Biju Janata Dal also to please associate with this issue. You must associate with this issue because it's touching the middle class. And this argument, please, I request the finance minister to come next 3-4 days and say on the floor of this house that this is not working because there's a GST Council meeting happening. Sir, if this doesn't happen in the next 3-4 days, Andolan chalu rahega for this, sir. The people of India cannot have medical insurance for GST. Thank you, sir. Thank you. Manya Dr. Sangeeta Balwant, demand to restart the sugar mill at Nandganj in Gazipur district of Uttar Pradesh. माननीय उपसभा महोदय जी, आपने मुझे एक गंभीर और लोक कल्याणकारी विषय पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। महोदय,
मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले से हूँ और केंद्र सरकार का ध्यान वहाँ बंद पड़ी चीनी मिल की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूँ। पटेल आयोग की संस्तुति के बाद 1978 में मेरे गाजीपुर जनपद में नंदगंज सिहोरी में एक चीनी मिल की स्थापना हुई थी और यह चीनी मिल 19 साल तक लगातार चली। और जब यह चीनी मिल चलती थी तो जनपद के लगभग 12 लाख कुंटल गन्ने से चीनी बनाई जाती थी, जिससे वहाँ के किसानों में एक खुशहाली थी और हजारों हाथों को रोजगार मिला था। और केवल जनपद गाजीपुर में ही नहीं, आसपास के जनपद जो थे वहाँ के गन्ना किसानों में भी एक खुशहाली थी और वो समृद्ध थे। लेकिन 1997 आते आते यह चीनी मिल बंद पड़ गई और इस सदन के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश गाजीपुर नंदगंज में बंद पड़ी चीनी मिल को पुनः स्थापित किया जाए या फिर वहां पर कोई ऐसा बड़ा उद्योग लगाया जाए जिससे उस जनपद का विकास हो सके, साथ ही हजारों हाथों को पुनः रोजगार मिल सके। इस निवेदन के साथ मैं 2 स्वरचित पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। चूंकि राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, कहना चाहूंगी। आपका विषय नंदगंज पर है। जी बिल्कुल, नंदगंज देश में ही आता है, समय मेरा अभी बचा हुआ है। वतन के चिराग हो तो उजाला करो, वतन के चिराग हो तो उजाला करो, दिल में मुल्क से मोहब्बत भी पाला करो। ये जमीन ये आसमां मेरा भी है और तेरा भी है, गैर देशों की जयकार लगाकर अपना मुंह मत काला करो, अपना मुंह मत काला करो। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्रीमती रेणुका चौधरी जी, माननीय श्रीमती रेणुका, नो नथिंग प्लीज। माननीय श्रीमती रेणुका चौधरी जी, माननीय श्रीमती रेणुका चौधरी जी, प्लीज आपस में बात न करें। माननीय श्रीमती रेणुका चौधरी जी, डिमांड टू फैसिलिटेट द इश्यूएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड टू सीनियर सिटीजन ऑफ द कंट्री। Sir, there is an issue which is contraindicatory to what we are experiencing. The RBI has given guidelines to our banks saying anyone above 60 is not credit worthy, and so we cannot access a credit card, but they will use our money which is kept with them, the savings, and they make money on that, but they will issue a debit card. Now this is a bizarre concept, sir, because a credit card is not just about getting immediate credit, but it has several social implications and access under emergencies. 60 years plus is no really a liability because people, longevity has come to India. And unless we make sure that a senior citizen can book a flight ticket, hotel bookings, making transaction, online paying bills. Now, on the one hand, you want a digital cashless India. On the other hand, you will not give credit to people who are 60 years and above. I'm sure here a lot of my colleagues have got it because we are a privileged lot of people. But the average middle class citizen who has substantial savings in the bank, and the banks come to look at our face and say, are you alive? They want proof of living. They come home and check whether you're alive or dead while they're talking to you. And they tell you this is for proof of life. And after that, they don't give you a credit card. International banks, which do not have an upper age limit, which are functioning in India, are also submitted to the RBI guidelines here. So what they practice in their countries, they don't affect the seniors. But here, when international banks come and you bank with them, you have a limitation on the credit, and you will not get a credit card. So this kind of discriminatory behavior, and when you're trying to facilitate the elders, there are a lot of active, perfectly all right seniors who are functioning and contributing to the economies of this nation. And I think this kind of discriminatory attitude has to be removed at once, failing which we are going to have only debit card. Now, sir, India has flight of capital. We have written off unsecured loans. You have given away the commercial banks' unsecured loans to the tune of 21 lakh crore. This government has waived off selected corporates to the magnitude of 16 lakh crore, but they can't give a basic credit card facility to a law-abiding, tax-paying citizen. Multiple scams have happened, sir. The Punjab National Bank and State Bank of India have given unsecured loans to people. We are all aware that Mehul Choksi, Nirav Modi, Jatin Mehta, thousands and crores of rupees have fled from... Thank you, माननीय रेणुका जी। माननीय श्री नीरज डांगी जी, बहुत धन्यवाद। डिमांड टू माननीय उपसभापति महोदय, एलिवेटेड रोड इन द सेक्शन ऑफ देसूरी नॉल कनेक्टिंग पाली, जैसलमेर एंड जोधपुर एरिया। थैंक यू सर।
राजस्थान के प्रमुख नगर उदयपुर को पाली, जैसलमेर व जोधपुर क्षेत्र से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग SH-16 का एक घाट सेक्शन हिस्सा जो राजसमंद जिले के गढ़बोड़ से देसूरी के मध्य स्थित है। लगभग 8 किलोमीटर के इस घाट सेक्शन को देसूरी की नाल के नाम से भी जाना जाता है। यह मार्ग राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यवसाय मार्बल ग्रेनाइट के प्रमुख नगरों उदयपुर व राजसमंद से पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, सांचौर व माउंट आबू तक जाने का मुख्य मार्ग है, जो कम दूरी व कम समय में व्यापार को बढ़ावा देता है। एवं यह मार्ग गोमती, चारभुजा, देसूरी होकर आगे गंतव्य तक जाता है। इसके अतिरिक्त देसूरी की नाल उदयपुर को भारतीय सेना के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जैसलमेर से भी जोड़ता है। अतः इस मार्ग का इस्तेमाल भारतीय सेना के वाहन भी उदयपुर और जैसलमेर में आने जाने के लिए इसके मध्य इस्तेमाल करते हैं। देसूरी की नाल घाट सेक्शन ऐतिहासिक श्री राणकपुर मंदिर, श्री परशुराम महादेव मंदिर, श्री चारभुजा नाथ जी मंदिर एवं श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा जैसे धार्मिक आस्था और अत्यंत मान्यता वाले स्थानों को भी जोड़ता है। हल्दी घाटी, जहां महाराणा प्रताप ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया था, वहीं हल्दी घाटी युद्ध हुआ था एवं यह प्रसिद्ध स्थल हल्दी घाटी भी इसी स्थान पर, इसी क्षेत्र में मौजूद है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के समीप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विख्यात कुंभलगढ़ दुर्ग भी यहीं स्थित है, जिसकी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया विश्व के द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। उपसभापति महोदय, एक दर्दनाक हादसे का भी जिक्र करना चाहूंगा। देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा हादसा देसूरी दुखांतिका इसी स्थान पर दिनांक 7 सितंबर 2007 को हुआ था, जिसमें मौके पर ही 108 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं भारतीय सेना के वाहनों सहित हादसों का अनुमान अगर लगाया जाए तो प्रतिवर्ष यहां औसतन 100 से अधिक लोगों को हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ती है। इन्हीं हादसों में मार्बल व अन्य सामान की क्षति होने से प्रतिवर्ष व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान भी होता है। देसूरी चारभुजा के मध्य इस घाट सेक्शन में 12 खतरनाक S और L सेक्शन के मोड़ हैं और 5 सकड़ी पुलियाओं पर खतरनाक ढलान है, जिसमें वाहनों की सांस हाँफ जाती है और कभी वो चट्टानों से टकराते हैं तो कभी वो 40 फुट गहरी पास में जो खाई है उसमें गिरते हैं। देसूरी की नाल में 1952 से अब तक लगभग 1000 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। देसूरी की नाल में लगातार होती जनहानि के मद्देनजर अगर वहां एलिवेटेड रोड बनाई जाती है तो वर्षों से चला आ रहा ये मौतों का सिलसिला समाप्त होगा एवं आसपास के क्षेत्र में आमजन और व्यापारियों को भी लाभ होगा। अतः सभापति महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह कि देसूरी नाल क्षेत्र में एलिवेटेड रोड बनाने पर गंभीरता से विचार हो। धन्यवाद। धन्यवाद डांगे जी। माननीय श्री त्रिचू शिवाजी, ऑनरेबल त्रिचू शिवा, डिमांड फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मेजर्स एंड फैसिलिटी ऑफ इंश्योरेंस फॉर स्टंट आर्टिस्ट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, again a serious issue which has long been overlooked by everyone. In the vibrant film industry of India, there are some stunt actors. They display their indispensable efficiency and talents to bring thrilling action sequences on the screen, sir, but they are totally neglected. Recently in Tamil Nadu, a senior stunt actor who has an experience of 30 years has fallen down from the rostrum and had to end up face a fatal end, sir. Sir, it is all because of, they called as a safety rope which snapped and it fell down. So maybe it's an isolated incident. But all the time, these very important stunt artists are financially and physically totally neglected. Despite their critical role as stunt artists, often work without the safety nets that other professionals take for granted. The absence of stringent safety standards on cinema sets leads to preventable accidents, leaving artists vulnerable to life-altering injuries. This jeopardizes their physical well-being and imposes a heavy financial burden on them and their families. It is imperative to implement comprehensive safety protocols on film sets, such as regular inspections, mandatory high-quality safety gear, and rigorous training for both artists and crew members. Government must collaborate with industry stakeholders to incentivize compliance and nudge them toward implementing and enforcing these standards effectively. Looking at global standards, film industries have detailed safety guidelines and dedicated unions for stunt performers. India should adopt similar measures, including the establishment of a stunt artist safety board to oversee compliance with safety regulations and advocate for artists' rights. Furthermore, one must recognize the financial insecurities faced by the stunt artists, and many of them lack access to basic insurance coverage, as private sector insurance companies often deem their work too unsafe to accommodate. So the government should come forward that the security under public sector insurance schemes so that they receive adequate compensation and medical care for work-related injuries, sir. And very important, the stunt artist safety board has to be constituted. Thank you very much. Thank you, Honorable Trichu ji. Honorable Sri Bikramjit Singh Sahni, Honorable Sri Bikramjit Singh Sahni, not present. Mania Srimati Mahua Majhi, need to conduct archaeological exploration located in the state of Jharkhand. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir.
हमारे झारखंड में एक ऐसा प्राचीन इलाका है जिसका आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल महत्व है, जिसके बारे में दुनिया के अत्यंत प्रतिष्ठित जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में कई वर्षों के रिसर्च के बाद इस बात को सत्यापित किया गया है कि झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र समुद्र से बाहर आने वाला दुनिया का पहला जमीनी हिस्सा है। इससे पहले जमीन का अस्तित्व समुद्र के अंदर था। धरती के 50 किलोमीटर भीतर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सिंहभूम क्षेत्र समुद्र से बाहर आया था और ये पहला इलाका है। पोलैंड से एक स्टडी रिपोर्ट आया था कि दुनिया का पहला सुनामी झारखंड में आया था। रांची यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट से इसकी पुष्टि हेतु दिल्ली से संपर्क भी किया गया था उस समय। हजारीबाग के मांडू थाना अंतर्गत दूधी नाला नदी में डायनासोर युग के पहले के अवशेष मिले हैं, हिमयुग के अवशेष मिले हैं, करोड़ों साल पहले के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। रांची यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर स्टूडेंट्स को फील्ड ट्रिप करवाने हर साल यहाँ ले जाते हैं, मगर फंड के अभाव में छोटी मोटी स्टडी ही कर पाते हैं। सिंहभूम तथा हजारीबाग क्षेत्र में ढेर सारी आश्चर्यजनक पुरातात्विक महत्व की चीज़ें बिखरी पड़ी हैं सर, जिनकी व्यापक खुदाई तथा खोज की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को बड़ा बजट बनाकर इस क्षेत्र में जियोलॉजिकल तथा आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराना चाहिए। इससे जियो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और पूरी दुनिया के रिसर्चर यहाँ आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू माननीय महुआ जी। माननीय श्री राघव चड्ढा जी, माननीय श्री राघव चड्ढा नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री प्रदीप कुमार वर्मा, माननीय श्री प्रदीप कुमार वर्मा not present. माननीय डॉक्टर सिकंदर कुमार demand to abolish the practice of using colonial era titles in the working of judiciary. Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on a very important issue. Need to do away with the colonial era practice of referring to the judges of the honorable courts of Bharat, especially that of the honorable High Courts of Bharat and the honorable Supreme Court of Bharat as your lordship, your ladyship, or my lords. Honorable Speaker, sir, the passing of Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, Bharatiya Suraksha Sanhita to replace the three colonial era criminal laws, namely the Indian Penal Code 1860, Code of Criminal Procedure 1973, the Indian Evidence Act 1872 being one of the many recent steps taken by the government to rightfully restructure the foundation of the judicial system of Bharat for the welfare of its people had given me hope and a new sense of purpose. Sir, be a part of the Indian legal system, which in its language, color and delivery was never meant to serve justice to the people of this nation. In many years of practice, we too have become a part and victim of the same system. The language, mannerism and the code of conduct taught to the practitioner of law chips away at our very basic root, that is identity. When we are inducted into the legal profession, like many young people today, we are taught to address the honorable judges of the courts of India, especially the judges of the honorable High Courts and honorable Supreme Court as your lordship, my ladyship or my lords. This colonial era practice is not proposed or mandated by law, but due to its customary nature, it is still followed till date and has done more harm than good to the esteem and identity of young practitioner of law, because in its use it proposes a separatism of the ruled and ruler, and at the outset proposes or indicates no sense of justice. The Bar Council of India had taken a step in the right direction, wherein its rules as inserted in Chapter 3A on to address the court to Part 6 added in 2006. It is stated that consistent with the obligation of the bar to show a respectful attitude towards the court and bearing in mind. Question number 136.